अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं गांव दियोसानी में, जहां पर एक ही वक्त में 2 जनाजे उठे गए। कई बच्चे यतीम हो गए, 2 खवातीन बेवा हो गई और वालिदैन से उनके वाहिद कमाने वाले छीन लिए गए। वजह क्या थी? सिर्फ 2 एकड़ जमीन का झगड़ा। 2 बहनें हैं जो कि अपने भाई को जमीन देती हैं और भाई से 1.25 करोड़ रुपया वसूल करती हैं। 1.25 करोड़ वसूल करने के बाद वो जमीन किसी और को बेच दी जाती है और उस जमीन की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उस जमीन पर जाने पर, उस जमीन पर पानी लगाने पर लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि सीधी फायरिंग की जाती है और 2 भाइयों को मार दिया जाता है। कई बच्चे यतीम हो गए इस पूरे मामले में। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, फैमिली से बात करते हैं। जमीनों की लड़ाई अक्सर इसी तरह से होती है जो कि हम लोग देहातों में देखते हैं कि नस्लें खा जाती है लेकिन जमीन वहीं पे रहती है। और ये चीज समझने में कि हम लोगों की किसी के साथ भी जमीनों ने नहीं जाना, जमीनों ने यही रह जाना है और उसकी वजह से फिर भी हम लोग अपने पूरी नस्लें, पूरा खानदान तबाह कर देते हैं। ये समझने के लिए शायद और नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिलहाल ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं सारा मामला क्या है, इनसे बात करते हैं कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग इस जान से गए और ये लड़ाई अभी कहाँ तक जाएगी और इससे पहले कब से चलती आ रही है। बात करते हैं उनसे। फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। मैनू ये दसो कि चाचे ताए दी लड़ाइयां ने ਤੁਹਾਡਾ भाई ਹੈਗਾ ਵੇ जिन्ने मारे है? भाई फौत हो गया, उसके बेटे अगों दी औलाद है जी। ते कदों दी दुश्मनी चल रही है ਤੁਹਾਡੀ? कदे कोई दुश्मनी नहीं सी। फिर कि ना वो चाचे दे जेड़ा दूसरा बच्चा नहीं कतल होया मेरे चाचे दा, ओदी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। अच्छा, कितनी जमीन है? हां, कितनी जमीन है? वो 2 एकड़ सी। 2 एकड़? सिर्फ 2 एकड़ जमीन ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ। अच्छा, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਹੋ, ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹੋ। ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਬਜਾਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਧੇ ਆ ਅਕਬਰ ਜਾਈਏ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 9ਵੀਂ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ 3ਵੀਂ ਚ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? 2 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋੜਾ ਭਰ ਕੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਅਸਲਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਨਾ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆਹੋ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ। ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ? 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ? ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹਨਾ? ਅਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ? ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਠਾਣੀ ਬੜੀ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ। पहले कादी लड़ाई हुई सी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ नहीं हुई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा, अभी आप उनको बात करने दे। अच्छा, ਇਹਨੇ कैसे आके पर मतलब चाचे ताया दी लड़ाइयां होंदियां रहियां ने। तू जान दे पुत्रा ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ आके मैं नहीं जाने, अच्छा, मैं मरवाऊंगा तुम्हें। की कहनी मरवाना है? हाँ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। अच्छा, फिर मेरा पुत्र से वो माइक कॉल करो मुंह दे इंज वो पट्ठे बढ़न गया है। अच्छा, पट्ठे बढ़ गए तो उन्हें इन्ने के पट्ठे बढ़े ने, वो रोला पै गया। वो तो पट्ठे वो छाड़ के ना तो हौली हौली वो तुर पिया, वो उड़ा ही चलता उन्हें छड़ देते पट्ठे। चल अच्छा, वो चले गया, उड़ा है कि नहीं हुआ। उन्हें आख्या आ गया वो तेनू मारो, तेनू मारेंगे। उन्हें आख्या भरा मार दे। उन्हें क्या पता मेरे भरा मार दे, उन्हें गोली मारती। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਉਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਹੈ? ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ। ਸੀਨੇ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈ मोटरसाइकिल लेके चले गया। अच्छा, चले गया तो उन्हें जाके बस इन्ने पट्ठे वड्डे ते उन्हां दा किते आपस दे विच रौला पै गया। चले जांदा भी जदों कोई रौला पैंदा है। ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਪੱਠੇ ਨਾ ਵੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀ ਪੱਟੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾਵਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਉਹ ਕਮਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਚ? ਮੈਂ ਬਈ ਉਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਾਈ ਲੜਾਈ ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਫਰਾਈ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਖ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 15 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਵੈਸੇ ਸੁਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਸਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ? ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਧੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜੋ ਘਰ, 12 ਵਜ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਮਾਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਜਿਓ ਜੇ।
ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ, ਸੱਸ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਬੱਚੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀ। 4 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣੇ? ਹੁਣ 3 ਭਰਾ ਸੀ। 3 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ छोटे जो टुकड़े की लड़ाई है। जमीन के छोटे से टुकड़े की लड़ाई होती है और उसके बाद पूरे के पूरे खानदान उजड़ जाते हैं। आप लोगों के सामने है ये एक खानदान है जिनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों के जो बाप है वो छीन लिया गया, 6 बच्चों को यतीम कर दिया गया। वो खातून बैठी है जिसकी बेटी इस घर में ब्याई गई थी, उसकी बेटी को बेवा कर दिया गया। लड़ाई क्या है कि ये चाचे बाबों की जो लड़ाई होती है, अक्सर देहातों में आप लोगों ने सुना है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं और उनके पीछे नस्लों की नस्लें जो है ना तबाह हो जाती हैं और नस्लों की नस्लें खत्म करते जाते हैं। जमीनें वहीं पे रह जाती हैं और जमीनों को वो जो खेती बाड़ी करने वाले होते हैं वो कब्रों में जा पहुंचते हैं। कोई भी साथ अपनी जमीन नहीं लेकर जाता। लेकिन इस चीज को समझने के लिए नस्लें खत्म हो गई हैं। अब एक घर ये है, इस घर में सफ़े मातम है कि जिस घर में 6 बच्चों को यतीम कर दिया गया, जिस घर का कमाने वाला जो है इस टाइम कब्र में है। वजह सिर्फ ये थी कि वो पट्टे काट रहा था और उसने कहा कि मेरे ये भाई जो चचा जाद होते हैं, उसने कहा मेरे भाई हैं, मुझे नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा हम तुझे भी मार देंगे। किस किस्म की खातून है जो अपने बच्चों को खुद साथ ले जाती है और आके कहती है कि चलाओ गोलियां। और ये किस किस्म के लोग हैं जिनके घर में बोरियों के हिसाब से असला मौजूद है। की कितना पुलिस ने उनती कर? पुलिस अभी पेश हो गए। पुलिस आई सी इधर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ 3 ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਘਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਸਦੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ? ਆਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ? ਉਹਦੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਜੇ। ਲਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਸਭ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਆਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ? खत्म लगी जबागी कहते हैं। की कह रहे ने माँ जी? कल उन्होंने खत्म लगी है, कल सारे आ बढ़िया ने। कल खत्म सी? हाँ जी। तो इधर आ गए सारे? फिर पुलिस ने लिया के बाहर देता है।
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਲੱਗਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਹ ਵਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲਾ ਦਾ ਖਤਮ ਦਿਵਾਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਾਊ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਪੈਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਰਵੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਵਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਨਸੀਮ। ਇਹ ਨਸੀਮ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। बड़ी हैरान कुन बात है कि ये खातून जो है वो खुद अपने बेटों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रही है कि बदमाशी करो। ये खातून अपने बेटों को खुद शह दे रही है कि असला लो, गोलियां चलाओ, चाचों के बच्चों को, ताए के बच्चों को, सबको खत्म कर दो। 2 एकड़ जमीन है, यकीन करें एक छोटा सा जमीन का हिस्सा है और उसकी सारी लड़ाई है। मां ने पुत्र ने आख्या है मेरा छोटा बच्चा डंगर लेके गया है, मज्जा लेके गया है। अच्छा। उन्हें आख्या ठंडा करके आ गए तो चुक लियाओ। की कहती है? ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। अच्छा ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ छोटे बेटे ने अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। चुक लियाओ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ मां ते बेटा हाँ? फिर मुंडा उत्तों भजा असि आख्या ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। जी आप बताएं। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। अच्छा ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, हाँ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ मां नाज मोटरसाइकिल। जब माँ ही सब कुछ करवा रही है तो फिर तो हमेशा का ये हर टाइम खतरे की घंटी है हाँ। जो आप लोगों के सर पर बजती रहनी है। बिल्कुल। अगर पुलिस आप लोगों के साथ बेहतर तामुन करे तो यकीनन आप लोग यहाँ पर पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ। दूसरी फैमिली, जिस फैमिली में एक और बेटा है जिसको इसी पूरे मामले की वजह से कत्ल किया गया, एक ही टाइम पर 2 कत्ल यहाँ पर किए गए, 2 मैयतें इस घर से उठाई गई, साथ चाचे बाबू के सबके घर मौजूद हैं, उनकी फैमिली के पास भी जाते हैं, उसके कितने बच्चे हैं। असल लड़ाई उनके साथ थी। हाँ। इनका कहना है हाँ। कि असल लड़ाई उस घर की थी, हाँ। इनके भाई की औलाद के साथ, लेकिन इनका जो अपनी औलाद है, जो इनका जो बेटा है, वो इस लड़ाई में बस फजूल में मारा गया। हाँ। उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, इनकी आपसी कोई रंजिश नहीं थी उनके साथ, किसी की लड़ाई में वो फजूल में मारा गया। अब उस फैमिली से बात करते हैं कि क्या वाकई में 2 एकड़ की लड़ाई है ये, या जमीन का जो मामलात होते हैं, ये इसके अलावा कोई और भी इनके आपस में इस तरह के मसाइल हैं जिस तरह से अमूमन देहातों में देखा जाता है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजें होती हैं। उनसे बात करते हैं। मोहम्मद सदीक के बच्चे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उसका छोटा भाई हमारे साथ मौजूद है। ये वो भाई है जिसको इतला दी गई थी कि तुम्हारे भाई को मारकर फेंक आए हैं, उसको उठा लो जाकर। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। क्या नाम है? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी। मुझे ये बताओ, आपको इतला दी गई थी कि जी। उसको मार के फेंका है, क्या जी। हुआ था? मैं इधर से जब गांव से निकला बाहर, हाँ। तो वो वापस आ रहे थे उन लोगों को मारकर। कितने लोग थे वो? 3 भाई थे, एक उनका भांजा था और माँ उनके साथ थी, अच्छा असला समेत। अच्छा, सबके पास असला था? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे इतला दी कि हम आपके भाई को उधर लाश बिछा कर आए, उसको आप उठा लें। तो उनकी माँ ने ललकारा मारा कि इसको भी मार दो। ठीक, मैं अपने घर भाग आया।
तो ये इनकी जो माँ है ना, ये सब कुछ करवाती है। ये खुद असला लेकर जाती है इनके पीछे और इनके पीछे ललकारती है कि किसी को ना छोड़ो, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ये जो इसका बेटा जिसने मेरे भाई के ऊपर फायर किया, ये लीड पुलिस का मुलाजिम है। अच्छा, लीड पुलिस हाँ, का, ठीक है। वो अपनी इस वर्दी का गलत यूज करता है, ठीक है। ये वर्दी उसको हिफाजत के लिए इसके पास है, तो वो इसके साथ जुल्म करता है लोगों पर। बदमाशी दिखाता हाँ, है। बदमाशी दिखाता है। तो हमें इसका इंसाफ चाहिए। जब वहाँ पर गए थे तो भाई जिंदा था? नहीं, मेरा भाई फौत हो गया था। भाई उस फौत हो चुका हाँ। था। और वो जो दूसरा आपका कजन है, वो मेरा जो चाचू है उसके साथ चल रहे थे, तो वो भी रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। तो यकीन आ गया था कि वाकई ये सब कुछ ये जिस तरह से बता रहे हैं ये कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों के उनका कहना है वालिद का कि इस तरह की हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं थी। और जिस इजाज नामी शख्स ने मेरे भाई के ऊपर फायर किया है, वो इसका इतना करीबी दोस्त था कि मैं उसके साथ नहीं था, वो उसके साथ था। इतना दोस्त था जिसने मारा है। हाँ। मतलब कजन हुए ना? हाँ, कजन हुआ। वो उसको अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था। और उसने ही मार दिया? हाँ, उसने ही मार दिया, क्योंकि उधर लड़ाई हो रही थी तो चले जाते हैं। हाँ। तो उसको नहीं पता था कि मुझे मार देगा। हाँ। वो उधर गया है उनके पास, तो उन्हें सबसे पहले उसको ही मारा है, जिसको वो अपना दोस्त मानता था। ये औलाद है उनकी? हाँ, ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। उसको दो माइक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुजैफा। मोहम्मद हुजैफा। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? इंटर के पेपर दिए। बाबा पढ़ा रहे थे आप लोगों को? मतलब आप लोग एक गांव में रहते हो और आपके बाबा आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे थे। हाँ जी। क्या चाहते थे बाबा बनाना आपको? बाबा कह रहे थे आपको अच्छे, मतलब के ये बहन है आपके साथ? पुप्पो है। ये पुप्पो हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये बहनें हैं बाकी ये? हाँ जी। तो बाबा के इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े होते थे पहले? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुए? तो ये जिन्होंने मारा आपके बाबा को, इनको क्या कहकर बुलाते थे आप? चाचू। चाचू कहते थे? कभी सोचा था चाचू बाबा को मार देंगे, चाचू यतीम कर देंगे? कभी भी नहीं सोचा था। तो ये जो इतना असला लेकर फिरती है ये खातून जिसका नसीम आप नाम बता रहे हो, इतना असला इनके घर में कहाँ से आया? पता नहीं। नहीं पता? आपको भी नहीं पता इस बारे में? ये असला बोरियों में कहाँ से आ रहा है? जाहिर है वो पुलिस मुलाजिम है। पुलिस का मुलाजिम है? पुलिस में वो क्या है? पुलिस मुलाजिम, वो कांस्टेबल है। वो कांस्टेबल के पास बोरियों में असला दिया जाता है? नहीं, ये तो हमें वो उधर से आते हैं। इन्होंने इनसे बड़े जो इनको चलाने वाले हैं ना, हाँ हाँ। वो भी इनसे बड़े गैंगस्टर हैं, ठीक है। वो इनको असला देते हैं। अच्छा। हाँ, हमको उनका भी पता है। वो इनको असला देते हैं, उनके एक इशारे पर ये सब कुछ करते इससे हैं। पहले क्योंकि आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं थी, ये जो नसीम बीबी है जी। जो ये यहाँ की बदमाश बनी फिर रही है, अपने बेटों को भी बदमाश बना रही, अच्छे ताल्लुकात थे आप लोगों के? हाँ, हमारे अच्छे ताल्लुकात, मिलते जुलते थे हाँ, एक सब दूसरे कुछ के करते साथ? थे। कभी उसने इससे पहले कोई बदमाशी वगैरह दिखाई आप नहीं, लोगों हमें को? नहीं दिखाई। सही थी ना? क्या कहते हो उसको? मैं उसको ताई कहता। ताई कहते हो? तो ताई ने सब कुछ कर दिया। हाँ, आपका सब। क्या नाम है? इसको दो माइक। एहसन। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं पता नहीं। अभी नहीं पता? बाबा ने कभी कुछ कहा था कि ये बनना बड़े होकर? नहीं। कुछ भी नहीं कहा था। आपके भी बाबा हैं? वो आपके भी बाबा थे? आप भी पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास। तो बाबा की याद आ रही है? हैं? यस। आती है बाबा की याद? प्यार करते थे बाबा? हाँ। आखिरी बार क्या बात की है बाबा के साथ? आप लोगों की क्या मुलाकात हुई थी बाबा की? कुछ नहीं। आखिरी बार बाबा से कोई बात हुई थी आपकी? नहीं। किसी की भी कोई बात नहीं हुई है? ये लोग स्कूल थे उस टाइम? मदरसे भी चले गए थे। ठीक है, दूसरी फैमिली के पास भी चलते हैं। उनके घर में भी एक क़यामत का मंजर है। उस घर में भी एक खातून बेवा हुई है, उस घर में भी बच्चे यतीम हुए हैं, उस घर के वालिदैन से भी उनकी औलाद छीनी गई है। उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सदीक की अहलिया इस टाइम, उसकी जो बेवा है वो हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। बहन, मुझे ये बताओ कि ये क्या कोई वाकई में दुश्मनी के बगैर ये सब कुछ हुआ है, एक हादसाती तौर पर हुआ है, या आपको लगता है कि ये वाकई आपके शोहर को भी टारगेट किया गया था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ हमारी। अच्छा। उन्होंने बस जानबूझ के उनको साथ ऐसा किया है। अच्छा जी, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी उनके साथ। अच्छा। आपके 6 बच्चे हैं? जी, मेरे 6 बच्चे 6 बच्चे हैं। आपका शोहर वैसे कैसा इंसान था आप लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ? वो बहुत अच्छे थे, अपने बच्चों के साथ भी और हमारे साथ भी।
कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल हो गए, 19वां साल लगा हुआ है। 19 साल से आप इसी गांव में मौजूद हो? जी, इसी गांव यहीं में पे रहती हो? जी तो इससे पहले कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? जी, हमारा नहीं हुआ, आप लोगों का नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ, उनका हुआ था। हमारा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो अब कोई अपील करना चाहती हो आप इदारों जी से? मैं अपील करना चाहती हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने मुझे बेवा किया, मेरे 6 बच्चों का यतीम किया, हमें इंसाफ चाहिए। ये आपकी जो बेटी है इसको क्या हुआ है? इसको अपने पापा का इसने सदमा लिया ना, उसकी वजह से इसे, इसका दिमाग है, कभी कोई बातें करती है, कभी कोई बातें करती है। ये अब अपनी सही पोजीशन में नहीं क्या है। कहती है ये? कभी कहती है उन्होंने मेरे पापा को नाजायज मार दिया, बस इसी वजह से इसने ना बहुत ज्यादा सदमा लिया है। इसे समझ नहीं आती मुझे ये बात करनी है नहीं करनी है। ना इंसाफी हुई है हमारे साथ, बिल्कुल। हमें इंसाफ चाहिए। अब बच्चों की कफालत का कौन जिम्मा लेता है? बच्चों ये किस तरह पलेंगे? आपके शोहर तो माशाल्लाह बच्चों को यहाँ पे रहते हुए पढ़ा रहे हैं। जी मैं पूछा बच्चों से, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं जी, आपके? सारे बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। एक छोटी बच्ची है, उसे भी अब दाखिल करवा दिया स्कूल में। अच्छा जी मतलब वो पढ़ाना चाहते थे अपने बच्चों को? जी, उन्हें एक बहुत- आदमी, एक शरीफ शहरी जिस तरह जिंदगी गुजारते उस तरह गुजार रहा था। जी, उसे बहुत शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। इधर स्कूल 5 तक है, वो पढ़ाने में अपने बच्चों को लेकर जाते थे, लेकर आते थे। अच्छा। उन्हें शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। जो मेरा ससुर है वो दिमाग से मेंटल है बेचारा, मेरी सास भी इस लायक नहीं है। बस मेरा बेटा है, वो 17 साल का है अच्छा अभी, तो वो क्या कर सकता है इनके लिए? कुछ नहीं कर सकता वो, मुकाबला ही और नहीं वो- कर सकता? जी नहीं कर सकता मुकाबला। और अभी उनको 3 दिन हुए फौत हुए। उनकी जो घर वाली औरतें हैं वो सारी नसीम आ बीबी? गई। जी, नसीम बीबी की जो बहू हैं वो सारी घर आ गई हैं। क्या वो किसी बकरी के बच्चे को मार कर गई थी जो वो इधर आ गई हैं? कत्ल हुआ है और फिर भी वो आ गई हैं, और पुलिस वाले उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको अंदर बिठा कर रखा हुआ है और कहते हैं नहीं है वो नहीं है। सबने देखा है कि वो आई हैं। अच्छा, पुलिस वाले उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? जी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उनके जो उनकी भैंसें हैं उनका ख्याल कर रहे हैं। पुलिस ये वाले? पैसे की बात है ना। ये पुलिस वाले? जी, पैसे की बात है ना। पुलिस वाले आप किसी की माल डंगर की हिफाजत कर रहे हैं? ये देखिए, उनके माल डंगर की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी औरतों की हिफाजत कर रहे हैं। जब हम लोगों ने हंगामा किया उधर जाके, तो उन्होंने उनको निकाल दिया उधर से। ये इंसाफ है? अब ये मतलब आपको अगर वो इधर आएंगे ना, हाँ। तो बच्चा है मेरा छोटा बच्चा, उसका खून खौलता है। बड़ी मुश्किलों से उसको रोका हमने, कल भी बड़ी मुश्किलों से रोका, तो फिर वो इधर आकर दोबारा फिर कत्ल करवाएंगे, फिर दोबारा खून खराबा होगा इधर, मजीद लाशें बिछेंगी। हाँ, फिर इसका मतलब ये ना किसी की सपोर्ट की वजह से वो इधर आए ना। अगर किसी की सपोर्ट नहीं होती तो वो क्यों आते इधर? यकीनन पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे रही है उनको, तहफ़्फ़ुज़ दे रही है उनका उनको, साथ दे रही है। आप लोगों से पुलिस ने कभी कोई डिमांड की है? जी नहीं। कभी सुना है आपने कि जो कत्ल कर जाएं और उनके भैंसों को चारा डालते हैं, उनके घर की हिफाजत करते हैं, वो भी पुलिस मुलाजमीन हैं? कोई सुना है आपने? नहीं, हम अंदाजा और लगा सकते हैं आपकी तकलीफ का। तीसरे दिन खत्म लग रहा है और उनकी औरतें घर आ रही हैं। ये इंसाफ है? आपके साथ कोई आखिरी अपने शोहर की कोई बात आपके साथ हुई हो? आखिरी वो, मैं तो अपनी अम्मी के घर थी। हाँ। मुझे वो उधर से रात को 11 बजे आए थे। हाँ। कोई बात नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उनके वैसे होता है साथ। ना, शोहर ने जाने से पहले कोई बात की हो, वो फिर जहन में रह जाती है कि ये मेरे साथ आखिरी बात करके गए थे। वो आखिरी बात उन्होंने काफी देर तक 11 बजे तक हमारे घर बैठे रहे उधर। हाँ। अम्मी के घर बातें करते रहे। हाँ। तो आखिरी बार वो मुझसे, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सुबह आ जाना, सुबह टाइम से ही आ जाना। और पता नहीं अल्लाह ने कैसी कबूलियत की घड़ी थी वो, और मैं सुबह 5 बजे अपने घर इधर आ गई। 5 बजे उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जान से उनको मार दिया है। मैंने तो सुना था कि टांग में गोली मारी है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जान से खत्म कर दिया उनको। ये नहीं पता था वापस आऊंगी तो पूरी दुनिया उजड़ गई होगी। जी, मुझे ये नहीं पता था। ये वो बेटी है जो जाहिर है बाप का एक सदमा, और इस तरह के बाप का सदमा जो अपने बच्चों को इतने लाडों में रख रहा है,
गांव में अगर स्कूल नहीं है तो गांव से बाहर लेकर जा रहा है अपने बच्चों की तालीम के लिए, कुछ बनाना चाहता है। अब ये वो बच्ची है जिसके जहन पर इस चीज़ का इतना असर हुआ है कि बकौल माँ के बकौल इधर के मौजूद रिश्तेदारों के, ये बच्ची जो है अब इस तरह की बातें करती है जिससे अंदाज़ा होता है कि बच्ची ने ज़्यादा अपने जहन पर इस चीज़ का सदमा ले लिया। बात करते हैं इससे। क्या नाम है आपका? अच्छा, बाबा के बारे में आप क्या बातें कर रही हो मामा से? वैसे ही बस हमें इंसाफ चाहिए और उन्हें नाजायज मारा गया है। हाँ, ये बातें कर रहे हैं। बाबा की याद आ रही है? हैं? बाबा क्या बनाना चाहते थे आपको? टीचर। टीचर बनाना चाहते थे। आप भी पढ़ रही थी अभी? कौन सी क्लास में? 10 के पेपर दिए। 10th के पेपर दिए हैं, तो अच्छे पेपर्स हुए थे? जी अच्छा। अभी आप आगे अब पढ़ोगी? जी पढ़ूंगी। पढ़ोगी, बाबा की ख्वाहिश को पूरा करोगी ना, है ना? अब बाबा वापस नहीं आएंगे लेकिन आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके सुकून तो दे सकती हो ना उनको, है ना? और मामा का अपनी सहारा भी बनना है, ठीक है ना? नवीद और परवेज इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो दोनों शख्स हैं जो उस दिन वकूए पर मौजूद थे। जख्मी आप लोगों के सामने हैं। एक के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, दूसरे का बाजू डंडे मार मार के तोड़ दिया गया है, फायरिंग की गई अंधाधुंध वहां पर। अब वकूआ हुआ क्या, लड़ाई कैसे शुरू हुई, बात करते हैं। क्या हुआ था वहां पर? लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, सीधे सीधे फायर खोल दिए गए आप लोगों के ऊपर, कुल्हाड़ी के वार किए गए। बड़ा भाई और से भाई बरकत और जवेद भाई ने पानी लगाया हुआ था। अच्छा। उसके बाद वो पहले शबाज आया था, उसने कहा था यार क्या मसला है, पानी क्यों लगाया हुआ? भाई ने कहा था यार आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। जिसने आपको पैसे दिए, आपने जिसको पैसे दिए है ना उस्मान वगैरह को, अच्छा। उसको लेके आए, उससे कि हमें कब्जा दे, हमारी जमीन हम पानी लगाएं चाहे कुछ भी करें। हाँ। वो चला गया वहाँ पर से 10 या तकरीबन 10-15 मिनट के वक्त के बाद आए हैं दोबारा और असला वगैरह लेके आए। पिछले उनकी माँ थी उनके साथ, तीनों भाई थे, एक भांजा था। अच्छा। आए दो हरफी बात की है, उसके बाद उन्होंने फायरिंग अंदर कर दी, शुरू कर दी है। उन्होंने क्या बात की आगे? बात की थी उनके यहाँ से चले जाएं वरना फायरिंग शुरू कर दी थी। ये जमीन किसकी है असल में? ये असल में हमारी जमीन है। हमने भाई ने पैसे जी भाई ने 1.25 करोड़ 2 एकड़ है। 2 एकड़ जमीन हाँ जी, है। भाई ने भी 1.25 करोड़ रुपया दिया हुआ है। किसको दिया? बहनों को दिया हुआ है पहले। भाई ने अपनी बहनों को ये जमीन उनसे ली है? जी ठीक है। और उनको कितने पैसे दिए? 1.25 करोड़ रुपए। 1.25 करोड़। उसके बाद ये जमीन भाई को क्यों नहीं मिली? भाई ने उन पैसे भी भाई से ले लिए और वगैरह उस्मान वगैरह को सेल कर दी है, भाई को नहीं दिए। उस्मान वगैरह जिन्होंने मारा है आकर? नहीं, वो दूसरा है, वो एक और सोडे है। का। हाँ जी, उसको आगे सेल कर दी बहनों है। ने किसी और मतलब 2 जगह से बहनों ने पैसे उठा हाँ लिए। जी। ये बहनों ने भाई को धोखा दिया? जी। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। इस टाइम तो 2 बहनों ने धोखा दी है। 2 बहनों को ये इनका हिस्सा था जमीन? हाँ जी। और इन्होंने भाई से पैसे भी ले लिए, भाई को जमीन दे दी। ठीक है। और उसके बाद जमीन कहीं और भी बेच दी। किसी और को अब सेल जिसको कर दी। बेची है वो कहता है कि जमीन मेरी है जी। और आप लोगों ने खरीदी हुई, आप लोगों को लगता है हमारी है। जाहिर सी बात, हमने पैसे दिए तो हमारी हुई ना। बिल्कुल, 1.25 करोड़ रुपए हाँ जी दे दिया हमने। ये देखा भाई है छोटे, उसके मकान तक नहीं है, बच्चे उसके छोटे छोटे रह गए, तो क्या क्या रह गया हमारा? ना भाई बच्चे रहा, हैं उसके? उसके 7 बच्चे हैं उसके। ये उस भाई का मकान है जिसने 1.25 करोड़ रुपया दिया? जी। 1.25 करोड़ रुपया कितनी जमीन का? 2 एकड़। 2 एकड़ का। 2 एकड़ जमीन का 1.25 करोड़ रुपया दिया है। और ये जो घर है ये घर नहीं है, ये एक खुला मैदान है जिसके अंदर उसके अब बच्चे जो हैं वो जिंदगी गुजारेंगे। किचन की हालत में आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई कैसे खाना बना सकता है। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इस खुले सहन में जिंदगी गुजारनी है। जी। सिर्फ बहनों की ये मेहरबानी है, बहनों की वजह से, और क्या, बस यही है ना। जो सदीक है जी, वो मौके पर ही वो मौके पर फौत हो गया था। उसकी तो कोई लड़ाई नहीं थी उसकी लड़ाई कोई नहीं, वो बेचारा बस ये समझ ले वो आ गया था, मुझे काट रहा था। चारे वगैरह काटने के लिए आया था। हाँ। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने उसी को, सदीक को फायर मारा। आपके सर पर क्या मारा गया? मेरे कई वगैरह मारी। ये जो इनकी माँ है ये क्या कोई ये कौन? माँ खुद ही गुंडी बन के आई थी, कोई तोड़े क्या वगैरह में गुंडी असला क्यों है? लेके आई है। ये क्यों है गुंडी? इसको किसने बनाया गुंडी यहाँ पर? खुद ही बेटों के सर पर बनी हुई है ना। 2 बेटे, एक एलीट में है, एक पंजाब पुलिस में है। इतना उनकी असला वजह से। मैं ये एक सवाल आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, इनके पास असला कहाँ से आता है इतना? जाहिर सी बात है ये पुलिस में है तो उसकी वजह से लेके आता है। नजायज असला रखा हुआ है ना, नजायज असला रखा हुआ है ना। पुलिस वाले हो तो बोरियों में तो नहीं ना असले आते, नजायज असला रखा हुआ है ना। बिल्कुल आप जी। भी वहाँ पर मौजूद थे। इनको दो माइक जरा। आपके साथ इस तरह, आपको अल्लाह का शुक्र है आपको तो कोई गोली वगैरह नहीं लगी, बाजू में चोट लगी है। आपको भी मारपीट हुई है? डंडों से भी मार रहे थे, गोलियां भी चला रहे थे? मैडम उनके पास 3 पिस्टल हथियार से
और आप लोगों के पास मतलब आप लोगों को तो हम पता भी नहीं होगा। इस मिशन पर हम नहीं गए थे ना। हमारा तो कोई लड़ाई वगैरह कोई चल नहीं। पहले जब लड़ाई हुई है आप लोगों की वो खत्म हो गई थी जी। ना, हाँ जी। ये लोग वापस आ गए, हाँ जी। फिर ये माँ की शय पर वापस दोबारा जी। गए हैं। तकरीबन 10 के 15 मिनट के वक्त के बाद दोबारा आए हैं। अच्छा, उसके बाद आए तो उन्होंने, उनकी माँ ने तोड़े में रखा हुआ था, पिस्टल वगैरह थे, डंडे वगैरह थे। तीनों भाई थे, शहबाज, एजाज और नवाज। एक उनका भांजा था यूसुफ असलम। उन तीनों के पास पिस्टल थे और भांजे के पास डंडा था। तो कई थी, यूसुफ ने कई मेरे सर पे लगाई है। सदीक है जौन सा, उसको फायर मारा है उसने, एजाज ने लीट में जौन सा। अच्छा। और जो जवेद भाई है, ये ऑन ड्यूटी है? हाँ जी ऑन ड्यूटी था उस टाइम। अच्छा। तो यूसुफ है जो, उसने वो शहबाज है, उसने फायर मारा है जावेद भाई को। ये नवाज है, उसने मारा है भाई बरकत को। यूसुफ ने पीछे से अभी मेरे सर कितने पर। लोग, 2 लोगों की तो डेथ होगी ना? 2 हाँ जी, 2 हो गए, एक फौत हो गए। हॉस्पिटल में है, एक हॉस्पिटल में है जी। और 2 हमें, 2 भाइयों को चोट लगी हुई जो उस टाइम आपके सामने। मतलब 5 लोगों के साथ हाँ जी। इन्होंने ये सब कुछ किया। आप लोग 5 लोग थे बिल्कुल। खेतों में, यकीनन कोई खवातीन होती, बच्चे होते तो ये जाहिर तो सी सब बात है, वो उन्होंने अंधाधुंधे फायरिंग की है। तो अगर वगैरह और कोई भी होता गांव में, दूसरे बेचारे होते, सब तो जाहिर जख्मी होने थे, फौत होने, जो भी कुछ होना था ना, उन्होंने तो अंधाधुंधे फायरिंग अब की ये है ना। कितने बच्चे हैं इनके जिनके घर में भाई जवेद के 7 बच्चे हैं 7 बच्चे हैं और उनकी बेवा। जी। अब घर में कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, बच्चा एक छोटा है, लेकिन जवान बेटियां हैं उनकी। ये बेटा है? जी। मतलब सिर्फ एक ये बेटा है जवान, बाकी बच्चे छोटे हैं हाँ अभी। जी। बेटा आप क्या काम करते हो? कोई काम पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 10th क्लास में पढ़ते हो। तो बाबा मतलब अब नहीं है, अब घर का सर्कल कैसे चलेगा? अल्लाह ही वारिस है उसका। ये जो आपके फुफ्फो जो हैं, आपकी फुफ्फो ने ये जमीन बाबा को दी थी, जी। ठीक है, आपको इस बात का पता है? नहीं पता। बाबा ने इस जमीन के पैसे दिए, आपको इस बात का पता है? नहीं पता। तो ये अब दोबारा एक नई जंग छिड़ जाएगी, बच्चों को नहीं पता। ये तो पुरानी नस्ल के फैसले है ना, ये तो बड़ों के फैसले थे, खत्म हो गए ना बड़ों के साथ ही। उनके सामने उनके बाप की कत्ल हो गया, मर्डर हो गया ना, तो जाहिर सी बात दुश्मनी खून में बनेगी ना। उन बच्चों को सर पर तो होश संभालने का, तो उनके बच्चों का बाप नहीं है सर पर, जाहिर से बहनों की वजह से हुआ ना। किधर है ये दोनों बहनें? अब ये मनिहाले के साथ नत्थों की गाँव, पता नहीं अब किस टाइम में, कोई पता नहीं उनका। बहनें आई थी इस मौके नहीं, पर? नहीं, अभी भी आना था उन्होंने। बहनें नहीं आई मौके पर? बहनों का भाई इस दुनिया से चला गया, बहनें नहीं आई। ये जायदाद के और जमीनों के जो मामले होते हैं ना, इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास दौलत हो, जमीन हो, इस तरह की चीजें हो, आप लोगों के खून से फैद हो जाते हैं। ये किस किस्म की बहनें होंगी कि जिन्होंने अपने भाई को जमीन दी, भाई से पैसे लिए, उसके बाद जमीन, मतलब लालच था ना, और उस लालच की वजह से भाई का पूरा घर उजड़ गया। बहनों को नहीं पता। आप भी वहां पर मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे आप भी, तो आपको जाने दिया उन्होंने? मैं छुप गया था। छुप गए, उनको पता ही नहीं होगा कि हो। उन्होंने तो हर किसी के पीछे अंधाधुंध फायरिंग की है, बस किसी की किस्मत थी हाँ। जो बच गया है, जिसके उन भाई को टाइम हुआ, लेकिन ये गलत किया था उन्होंने, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। जब छोटे छोटे बच्चे हैं भाई के, क्या करेंगे ये बताएं ना। हमें इंसाफ चाहिए। आप जब छुप गए हो वहाँ से, जब वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, जी। फिर निकले हो वहाँ से, उसके बाद वो क्या मंजर था वहाँ पर? क़यामत वाला मंजर था, क्या करें आप। क़यामत वाला मंजर था, अब क्या बताऊँ आगे मैं। बाप आपका जिंदा था उस टाइम पर? जी। उस टाइम जिंदा। बाप ने कोई कुछ बताया आपको? मैंने पूछा क्या हो रहा है उसके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। बाबा कह रहे इतनी थे मैं बात ठीक की। हूँ। जी। अच्छा, फिर हॉस्पिटल लेकर गए? जी। और हॉस्पिटल जाने तक डेथ हो गई उनकी। अब आप क्या मतलब ये घर कैसे चलाओगे आप? वल्लाही वारिस से आगे जो अल्लाह करे। कोई अपील करना चाहते हो इदारों से? बस कोई यही- अपील करना चाहते यही हो? अपील है, इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस आप लोगों के साथ ताउन कर रही है? 3 के 4 दिन हुए हैं, हाँ। भाइयों की डेथ हुई है, बिल्कुल। अभी कल कुल हुए हैं ना? हाँ जी, कल हाँ। कुल हुए हैं। हाँ। तो और उनके पुलिस ने उनके फैमिली जो उनसे घर पर लाके बिठा दी है। इंसाफ है क्या? इंसाफ तो नहीं है ना मैडम। वो औरत जो जाहिर सी यहाँ बात है, की ये गुंडी बनी फिर रही सोचे है। कल कुल हुए हैं हाँ। और उनके फैमिली पुलिस ने उन्हें लाकर बिठा दी है, फिर ये क्या इंसाफ तो नहीं है ना। ये तो नहीं, जाहिर सी बात है, ये जाहिर गुंडागर्दी है ना, बदमाशी होगी ना सरासर। इसका मतलब फिर पुलिस आप लोगों के साथ तो नहीं खड़ी ना? जाहिर सी बात है, इसमें यही जाहिर होता है, और क्या होता है मैडम। ये अभी 3 दिन हुए कुल हुए हैं और उन्होंने इधर मर्डर भी कर दिए हैं, उधर फिर घर फैमिली लाके बिठा दी है। ये तो गुंडागर्दी होगी ना जबरदस्ती, और क्या हो गया। ये इंसान है, कुछ जानवर वगैरह नहीं है, जब दिल करे जिसको मार दिया, जिसको उन्हों को तो रहम तो नहीं ना आता। ये तो एक बात नहीं। मुझे ये बता, मेरी माँ आई है, ये भाई है, भतीजा है, क्या करेंगे मैडम? अच्छा, एक और सवाल, ये जो
जिन्होंने मारा है जी, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये लोग पहले भी इस तरह का कुछ कर चुके हैं? कुछ साल ये पहले कुछ कई साल से इसी तरह कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने बड़े पहले भी तय- किसी को मारा है? नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन आज से किसी कुछ साल पहले जो नहीं मारा तो नहीं है इन्होंने। आप लोगों की फैमिली में नहीं कहीं बाहर किसी को मारा हो? इन्होंने अभी तक किसी को नहीं मारा, लेकिन फर्स्ट टाइम, लेकिन पता पहली है बार कोई ऐसे कैसे अंधाधुंध फायरिंग कर पहले सकता है वो किसी के ऊपर? लीट में था ना, उसके बाद पहले ने अपने ताया चाचू है उसके पीछे फायरिंग की थी। वो भी जमीन के जाहिर थी, उन्हों की जमीन थी खुद की। दूसरे ताए के साथ झगड़ा हुआ था, उसी के बेटों के पास फायरिंग की है। उस्मान और तनवीर है, दोनों को दिए 20 लाख रुपए दिए हैं अभी। किस बात के? इसी जमीन के झगड़ा खत्म हो जाए, बस हमारे मेरे भाई को रजिस्ट्री क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा पैसे दें हमें 20-25 लाख रुपए, हम आपको रजिस्ट्री करवा देते हैं। अच्छा, वो पैसे भी ले लिए, अब तक रजिस्ट्री को नहीं हुआ, ना फर्दे मिली। माँ ने पैसे दिए हैं वो? जी, खुद वालदा का पर बीघा 4 एक नाल था, वो सेल करके माँ जी ने दियो कि माँ जी ने की बेची है 4 कनाल जमीन थी ना जो इनके पास? हाँ जी, ठीक है। वो सेल की है, सेल करके फिर उनको पैसे दिए हैं। और लेकिन ये झगड़ा खत्म हो जाए बस। झगड़ा नहीं खत्म हुआ? झगड़ा खत्म नहीं हुआ। खानदान खत्म हो रहे हैं, झगड़ा नहीं खत्म झगड़ा हो खत्म रहा, नहीं जमीन का झगड़ा खत्म नहीं होगा। जी। ये नस्लें खत्म कर देगा, झगड़ा नहीं खत्म होगा। जायदाद और पैसे के मामले में खून किस तरह से सफ़ेद होते हैं, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल थी कि किस तरह से 2 बहनों के खून सफ़ेद होने की वजह से भाई का पूरा घर उजड़ गया। वो घर जो एक इस वक्त खुले मैदान का मंजर पेश कर रहा है, ना उस घर में किचन है, ना उस घर में कोई कमरा है, और उस भाई के जो यतीम बच्चे हैं वो अब उस खुले मैदान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनके पास ना रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, और वजह सिर्फ वो है बहनें। अल्लाह ताला इस तरह के शर से, इस तरह के रिश्तों के शर से और इस तरह के खून सफ़ेद होने से हम लोगों की हिफाजत फरमाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।